Hi guys, how's it going? I know you have been missing these particular Kingdom Club winner stories, but I was busy in some things. But today we have a very special guest with us. Her name is Aakriti Mahajan, and she's a tarot reader. Now, a tarot reader was able to achieve 50,000 rupees in just 20 days. And how did she do that? We'll cover in this particular case study, and we'll go deep dive into her secrets. And she will share all her secrets with you guys. So stay tuned because there's a lot to uncover, right? So welcome Akriti, welcome to the particular interview. How it has Hi, been going? Himanshu. It has been great. Thank you so much. It has been great because of you. Lovely, lovely. Awesome. So what do you do? Just a basic background. Who are you? What do you do? And a little bit about yourself. So I am Aakriti Mahajan. I am born and brought up in Shimla, Himachal Pradesh, and I studied in Shimla. Did my BCom, and then I always wanted to go to NIFT, National Institute of Fashion Technology. So I went there and I did my masters, and then I did 3 years of job in the corporate fashion world. So I worked for brands like Tommy Hilfiger, Vero Moda, Zara, and all those brands. But there was a missing link that was not fulfilling me. Like सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी are not like that happy. That brought me home back, and when I came back, so then I started doing like I got tarot. I didn't choose it, but it chose me. Okay. So that's what I'll give you a little bit background. Makes sense. Makes Yes, sense. You went to NIFT, there was a missing link, and then Tarot chose you, right? I loved NIFT. Okay. For 3 years, I worked in the corporate, but I was sure that this is not something I can do for next 60, 70 years. Got it. Got That's it. what. You know, when you said tarot, why did you choose tarot? Like there are too many things like numerology, astrology, tarot, like there are thousands of things. And you said that, tarot chose you. So why that business? Why in tarot? Why that skill? Why that? So this story goes way back in when I was in first standard, first class. So ऐसा होता है कि जब हम लोग बच्चे होते हैं हमें नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है एंड देयर वाज द स्टोरी दैट हमारी एक मॉरल साइंस की क्लास होती थी एंड देयर वाज दिस सर हु यूज्ड टू मेक अस मेडिटेट इन द क्लास और उससे पहले तक ऐसा कभी सोचा नहीं क्या सही है क्या गलत है एज किड्स जो भी आप कर रहे हो कर दिया वैसा है ही यूज्ड टू he used to make us meditate and he said one line जो मेरे दिमाग पे छप गई and he said that life में while meditating that life में दो रास्ते मिलेंगे एक सही और एक गलत एंड गलत पे चलोगे चल जाओगे पर बहुत जल्दी यू विल स्टॉप देयर सही पे चलोगे इट विल बी अ डिफिकल्ट रोड बट इट विल ओनली ओपन द डोर्स फॉर यू एंड आई वाज लाइक व्हाई इज ही बीइंग सो फिलोसॉफिकल कैन यू प्लीज शट डाउन फॉर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स एंड देन ही सेड वन लाइन पर तुम में से कोई नहीं कर सकता ये और वो मेरे दिमाग पे मेरे ईगो पे हिट हो गई सो आई वाज लाइक कोई नहीं हम मिलेंगे कुछ सालों बाद एंड हम दिखाएंगे कि किसने करा तो मैंने किसी को नहीं बोली ये चीज मेरे दिमाग में छप गई ये बात अब उस दिन से ये हुआ दैट आई स्टार्टेड टू इंट्रोस्पेक्ट कि कोई भी चीज करते वक्त एज किड्स ऑल्सो ये सही है कि नहीं है ये गलत है कि नहीं है मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है अगर किसी की कोई चीज अच्छी भी लग रही है मुझे अच्छी लग रही है मुझे उठानी चाहिए नहीं लॉजिक नहीं पता बट नो समथिंग इज स्टॉपिंग आई शुडंट उससे ये हुआ कि टैरो बहुत लोग करते हैं बट मैंने अपने इंट्यूशन पे 30 साल से काम किया है वहां मुझे कोई बीट नहीं कर सकता वो मुझे पता चल गया था क्योंकि जैसी फिर मैं ग्रेजुएशन में आई कॉलेज में आई द ड्रीम्स दैट आई वाज सीइंग वो वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन सच होने लग गए डेली ड्रीम्स रेगुलर आई वाज लाइक दिस इज समथिंग स्ट्रेंज ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी का सपना देख रही हूँ और मुझे कॉल ही आ जा रहा है उठते ही ऑफ दैट पर्सन दिस इज फ्रीकिंग मी आउट दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड देयर इज समथिंग दैट आई हैव मतलब मैंने कुछ कर लिया है अपना स्किल ना चाहते हुए भी डेवलप चलता रहा देन आई वाज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड चली गई एज यूजुअल एंड व्हाट हैपेंड देयर वाज कि वो डाउनस्ट्रीम जाती रही जॉब्स व्हेन समथिंग इज नॉट मेड फॉर यू यू आर गोइंग टू फेल एंड आई वाज लाइक ये मेरे साथ कैसे हो सकता है कि I've been a good student everywhere. People look up to me. मैं यहाँ पे आके औरों से पूछ रहा I'm failing. And I cried like crazy on road कि नहीं I am worthless. I can't do anything. It's like ठीक है छोड़ो अभी जो भी है घर चलो घर जाते हैं हिमाचल I have my home. Let me just go back. I came back. I was very sure कि मेहनत करनी है घर से ही कुछ करना है पर जॉब नहीं करनी है. And then I remembered when I was a kid, I always wanted to do something from home and I wanted to stay with my parents. Got it. I was doing that.
एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज गो जॉइन द जिम. तो थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया था एंड देन आई जॉइन द जिम. एंड एज आई सेड, यहाँ जब मैंने वो अपना पाथ, अपनी ब्लॉकेज हटाई कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई मेड फॉर, लेट माय लाइफ टेक ओवर मी, माय सोल टेक ओवर मी. सो व्हेन आई डिड दैट, इट जस्ट थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग. एज आई टोल्ड यू अभी कॉल से पहले भी कि थिंग्स कनेक्ट. सो थिंग्स स्टार्टेड कनेक्टिंग एंड टैरो मुझे जिम की वजह से मिला. Okay. आई नेवर बिलीव्ड. आई थॉट ये पैसे कमाने के तरीके हैं, फेक चीज है, जैसे सब लोग बिलीव करते हैं. मुझे भी यही था. बट द मोमेंट आई गॉट इट, आई गॉट स्टक इन टू अ प्रॉब्लम. मुझे उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. तो जितने भी आप स्पिरिचुअल लोगों से बात करोगे, दे विल टेल यू दिस वेरी वन थिंग कि जब आप उनसे पूछोगे आप इसमें क्यों गए, देयर विल बी सम वेरी स्ट्रॉन्ग हिट जिसका उन्हें ये होगा कि हमने किसी चीज साथ कनेक्ट कर लिया है बियॉन्ड दिस 3D वर्ल्ड एंड वी कैन हेल्प पीपल. एंड यूर लाइक अभी अपना छोड़ो. टैरो हेल्प्ड मी इन दैट सिचुएशन. आई वाज लाइक ये कितने लोगों की मदद कर सकता है. अब वो चूज कर दिया था. चूज करना आसान होता है, बट टू बी पर्सवेयर अबाउट इट एंड टू ग्रो, तो उसमें जब आपके आंसू निकलते हैं ना तो तो आपको पता होता है कि ठीक, चूज कर दिया, अब छोड़ना भी नहीं है. सो दैट्स वेयर आई वाज डूइंग इट एंड ठीक चीजें होती गई, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन दैट्स वेयर आई कम, जहां पे वो थोड़ा, जब मेरा ग्राफ नीचे जाने लगा था. बट दिस वाज माय वाई कि मैंने किसी एक स्किल को बहुत ज्यादा शार्प कर लिया है. आई वाज लाइक आई हैव टू यूज इट, मे बी दिस इज माय गॉड गिफ्ट. Got it. How was your life before ICE? Like you told me you're going to the gym, you found out tarot and everything like that. Like before that, on the tarot side and business side, how was your life before IC? Apart from my business and वैसे generally, No, everywhere, like in all aspects. so before ICE, हवा में तीर मारने वाली बात थी वो. एंड प्लस इस जनरेशन में, इस एरा में, स्पेशली कोविड के बाद, मैंने 2018 में ये डिसीजन लिया था, आई वर्क फ्रॉम होम. उस टाइम पे सबको ये लग रहा था कि व्हाट इज शी डूइंग एट दिस एज, नॉट गेटिंग मैरिड एंड डूइंग दिस क्रेजी थिंग, और इसको पता भी नहीं क्या करना है. बट इन 2020 माई इंट्यूशन वॉज करेक्ट. एवरीबडी स्टार्टेड टू वर्क फ्रॉम होम. सो जो उससे पहले का टाइम था मेरा, वो ये था कि मैं श्योर थी कि यही करना है, पर हवा में तीर मार रही थी. दैट्स व्हाट आई विल से. एंड ऊपर से आपको कोई गाइड करने वाला नहीं. और इस जनरेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि एवरीबडी इज पेविंग देयर ओन पाथ इंडिविजुअली. जॉब ज्यादा टाइम नहीं रहेंगी, बहुत सारी जॉब्स निकलने वाली है, तो सब लोग अपने पैशंस को परस्यू कर रहे हैं, लेकिन सबका रास्ता अलग है. बेचना एक स्किल है, लेकिन सबका रास्ता अलग है, और किसी को पता ही नहीं है कि वो कैसे पेव करना है, हाउ टू पेव दैट रोड. सो आई वॉज डूइंग गुड, बट आई वॉज, माई ग्राफ वॉज फॉलोइंग बिफोर आइज. एंड हवा में तीर मारने वाली बात थी कि आप दिन में इतने घंटे काम कर रहे हो, पर आपको पता ही नहीं है कि ये करना भी है कि नहीं करना है. सो इट वॉज ओवरऑल गुड. मेरे अपने फाइनेंसिस में कोई फर्क नहीं आ रहा था, मेरे ज्यादा कुछ खर्चे है भी नहीं, बट मुझे ये पता था ये ज्यादा टाइम चलेगा नहीं. अगर मैं ऐसी चलती रही बिना किसी मेंटोर के, इट विल नॉट वर्क आउट. आई नीड, एंड आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ कोर्सेज बिफोर दिस. Got it. So, how did you ponder upon internet coaching empire, or how did you basically find me? By your advertisement. Okay, so YouTube, Facebook, what is the platform? YouTube पे एडवर्टाइजमेंट थी, बार बार आ रही थी. एंड वन डे आई लाइक लेट मी जस्ट वेट. और उसमें एक वर्ड था आपका, जो ये six weeks to 6 figures. Yes. I did not listen anything else, but I was like, if he's saying 6 weeks to 6 figures and 99 rupees पे workshop है, let me just try this also. No. Let me just go for it blindly. और मैंने आपको वर्कशॉप में भी बोली थी ये बात कि and you said in the workshop कि this is India's biggest workshop जो वैल्यू प्रोवाइड करती है. एंड आई टोल्ड यू कि आपको बोलना चाहिए था, ताकि मैं उस बहुत पहले वो आ जाती इस चीज में. सो दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस टू योर पेज, लाइक योर आइस थिंग. आइस मुझे तब तक पता नहीं था, वर्कशॉप पता थी. Got it. So you found advertisement on YouTube and then you move forward from there. Yes. Right? Yes. Now you came into IC, everything is open, you get on a call, you see you're the right fit and you get in the program, right? Now you're going through some changes, right? You're completing worksheets, you're taking action, you're motivated, right? You're going through
some changes, right? How were you feeling when you were going through multiple changes, and what were those changes? This question I will say that जिस time पे ये सब हो रहा था, when I was filling the worksheets and I was doing that homework, talking to mentors, there was no change I could see, but I was trusting the process. क्योंकि जब आप उससे पहले इतने कोर्सेज कर चुके होते हो और आप कर चुके होते हो वो काम, आप एक पॉइंट पे ये होते हो कि ठीक है यार, ये भी करके देख लेते हैं, जो भी होगा आगे तब देखेंगे, जब होगा जो भी होगा. तो उस टाइम पे कोई चेंज नहीं मैंने फील किया. माई सेल्फ आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी इनटू द वर्क काइंड ऑफ अ थिंग. तो मुझे वो वर्कशीट्स की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कहा था लिख करके हाथ से दो. मेरे से कंप्यूटर पे काम होता भी नहीं है. इट्स लाइक चलो, दिस इज माई एडवांटेज. When I was doing that, when I was doing the homework and going through the modules and talking to mentors, मुझे कोई change feel नहीं हुआ उस दौरान. We were a mentor also and me also. Karan Raidur, big help. What a person he is. I cannot. Another person that I am so thankful to. So his brain, he is अपना दिमाग चलाओ कि what should she do, क्या नहीं करना है, out of the way जाकर के I am thinking, we were brainstorming. जब वो सारा करके जब एक बार में वो रिजल्ट दिखने लगा जिस दिन, that day it was like okay, it was not, I was trusting the process, and that's what I'll give advice to everybody. Trust the process blindly. Somebody has made it, कुछ सोच के बनाया है जिसने भी बनाया है, तो trust it, उस पे अंधा विश्वास करो, और जब वो चेंज दिखेगा ही दिखेगा क्यूमुलेटिवली. उस टाइम पे कुछ नहीं दिखा था मुझे. So it was like when you are going through the journey, you cannot connect the dots. But when it was like the viral reel or the Calendly sessions, or it was like the calendar filled, you're like, oh, now I know why it's working. Like everything else. Yes. So it was Yes. that light bulb which made you change Yes. the way you think. Got it. What are your favorite tools and templates while going through the process? Tools and templates सब लोग देते हैं. Mentors. Nobody gives you mentors. I have taken a lot of courses. I'm telling this again and again. मैं किसी को भी पुट डाउन नहीं कर रही हूँ, उनका तरीका अपना होगा काम करने का, बट किसी का हाथ पकड़ के चलना एक अलग चीज होती है. सो इफ you've been given mentors, you know कि अगर ये काम नहीं कर रहा है, you can call upon, you can book a call. So you have mentors, you can talk to them. Absolutely perfect, like a wonderful thing. Mentors. Then is your worksheets. और वर्कशीट्स एज सच जो लोग ज्वाइन नहीं कराई से, जिन्होंने करा भी है, वर्कशीट्स इतनी बेसिक है कि आपका खुद का थॉट प्रोसेस बाहर निकलेगा अगर आपने नहीं उसको कंटेम्पलेट किया कि आप ये क्यों कर. मेरा वाई बहुत क्लियर था, मुझे बहुत अच्छे से पता था, तो मेरा कहीं वो हिलना नहीं था, मुझे पता था. बट जो लोग सोचते हैं कि इससे क्या होगा, उन्हें नहीं पता, वो उभर के बाहर आता है टेम्पलेट्स के वजह से. एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप किसी भी चीज में टाइम नहीं बट एनर्जी फोकस के साथ क्यूमुलेटिवली लगाओगे, वो रिजल्ट देगा ही देगा. एंड व्हेन यू आर डूइंग वर्कशीट्स, यू विल हैव टू पुट इन योर एनर्जी एट वन प्लेस, तो वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा. सो टेम्पलेट, योर वर्कशीट्स, मेंटर्स एंड माइंडसेट. एंड आपने माइंडसेट के टाइम पे एक चीज कही थी कि डिलीट एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट इन योर ब्रेन, कि तुम्हें सब पता है, पहली बात तो यही डिलीट कर दो. एंड आई वाज लाइक ठीक है, डिलीट कर दिया, बट क्या ही नया बताएंगे. बट व्हेन आई गॉट इनटू माइंडसेट, आई वाज लाइक ओके, ऑलराइट. दैट अर्ल नाइटिंगेल वाला जो एक वो है, तो वो 30 दिन सुना है, और माय फादर स्टार्टेड सेइंग ये क्या है, ये मेरे को जरा लिंक भेजना इसका. I think you mentioned this in group, right? I remember that. मुझे भी भेजना जरा इसका लिंक, क्या है ये, मैं भी रोज सुनूंगा हिंदी में. मैंने उनको फिर हिंदी वाला करके दिया था. एक तो वो था, आई लिसन टू इट. एंड द सेकंड थिंग वाज योर जो बहुत ही पर्सनल चीज थी, 30 Laws. फॉर्मूलाज, 30 लॉज. सो ये दो चीजें थी जो कभी माइंडसेट में मैं तो नहीं ला सकती थी, वो बताना ही पड़ना था किसी को. सो until or unless you don't properly do the courses, you will not get it. So yes, mindset, worksheets and mentors. Got it. So ठीक है, एयर चेंज आया, सब कुछ हुआ, अब लोग जान रहे हैं क्या, who is Aakriti, she's a tarot reader, everything good, right? How did you got the audacity to charge people? Like वो अंदर से कैसे आया कि now I should charge for this, or I should charge high ticket for this and people will pay for me, because you have never done this, right? 2018 से 2020, if you are not getting any payments for this,
or maybe some payments, you obviously have अंदर से कि यार this may not work. So how did you got to the point where I want to charge good and I'll sell this? No, I was charging the same शुरू से ही, मैंने चेंज नहीं किया था, and I can charge even more, but I don't do it because I want every middle class person to afford this guidance. क्योंकि बहुत जो टैरो रीडर्स होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं, बहुत हाई चार्ज करते हैं कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आई केप्ट माई प्राइस पैरामीटर हमेशा से सेम। हाँ, पर मैंने ये शुरू किया था इन 2018 2019 में मैंने टैरो शुरू किया था। फर्स्ट 3 months आई डिड नॉट चार्ज एनीथिंग बिकॉज आई वाज लाइक लेट मी लर्न, अभी तो मुझे नया नया मिला है, क्या पता शौक होगा। आई स्टार्टेड एज अ हॉबी। तो हुआ ये कि वन आई यूज्ड टू आस्क फॉर फीडबैक्स कि ठीक है, डोंट पे मी एनीथिंग, यू गिव मी अ फीडबैक जो मेरे को बाद में काम आएगा। सो देयर वाज दिस वन पर्सन जिसकी रीडिंग में मैंने इतना टाइम लगाया, तब तो मैं 2 दिन में एक रीडिंग करती थी, एंड शी डिड नॉट गिव मी द फीडबैक, एंड शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड बाय द वे, एंड शी केम आउट ऑफ इट कि नहीं नहीं, नाउ आई एम वेरी हैप्पी, एंड शी डिड नॉट गिव मी द फीडबैक, एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी कि ऐसे काम करोगे ना तो चलेगा नहीं। आई वाज लाइक डूड आई हैव टू स्टार्ट चार्जिंग। आई डिडंट से एनीथिंग टू हर। चार्ज मैंने 3 महीने बाद ही शुरू कर दिया था, वरना मेरा प्लान नहीं था। तब जो शुरू किया था चार्ज करना, ऑलमोस्ट प्राइस सिमिलर है, थोड़ा सा ऊपर किया है। तो आइस की वजह से मैंने अपना प्राइस पॉइंट नहीं चेंज किया, बट मेरे पास क्लाइंट्स इतने आने लग गए, क्लाइंट्स इतने, लीड्स इतने थे कि मेरे को एकदम रोना आ गया था कि मैंने कहाँ फंसा दिया है खुद को, मतलब किसको I think say this this? is the proof that my calendar is so full that I have no time left, and it's like now it's eating over my life. या आई वाज लाइक ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जब लीड्स आएंगे तो साथ बात भी करनी पड़ेगी, और आई वाज लाइक शिट, कितने लोगों से बात करूं मैं, एंड देन आई वाज लाइक मैं किसको बोलूं, वो मुझे ही बोलेंगे कि तुमने ये चीज मांगी थी, अब भुगतो। Yeah, सो because I दैट वाज द when पॉइंट। you came in, your biggest problem was leads only. It was not sales ever. It was like you give me amount of people, I'll convert. I know. So you were यस, like, okay, fine. And when we give that, you're like, नहीं अब नहीं चाहिए मेरे को. नहीं चाहिए था पर इतना हो गया, आई थिंक दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू यू, कि Yeah, yeah. इतना हो गया था कि मैं ऐसे हो गई थी कि अभी कौन संभालेगा भाई इसको, तो ऐसा So था वो। it is not the ticket that you went for; it is the volume that you got. So you paid यस, more volume. Like more people came in the door. यस, आई एम नॉट इवन प्लानिंग टू चेंज द प्राइस पॉइंट, मे बी आई ऐड ऑन न्यू थिंग्स, बट आई डोंट वांट टू, सब फिर Awesome. अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। Awesome. How did your delivery system look like compared to the previous one to the new one? So after ICE, what did you change your delivery system as well? Because when you get a lot of clients, you need to, organize your time, craft things better, and give a better service because now you are building your business, right? What changes did you do in order to make the delivery system better? सो डिलीवरी सिस्टम में मैंने, मेरा कैलेंडली हमेशा से चलता है, जो पहले कोर्सेज लिए थे आई लर्नड अबाउट कैलेंडली देयर, तो नोबडी कैन कॉन्टैक्ट मी वैसे ही, दे हैव टू गो ऑन कैलेंडली एंड बुक कॉल। यहाँ पे ये हुआ अब की जो लीड्स आ रहे थे, अब व्हाट्सएप भी होता है, फेसबुक भी होता है, इंस्टाग्राम भी होता है, आई रिमूव ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, एंड वाज लाइक इंस्टाग्राम पे ही आएंगे, यहीं से मुझे सॉर्ट करना है, यहीं से कैलेंडली पे जाएंगे, यहीं से ये व्हाट्सएप पे आएंगे, एंड देन वहां से बिगेस्ट थिंग मैंने कम्युनिटी बना ली थी, जो एक हमारा उसमें वो है, तो यू हैव टू मेक अ कम्युनिटी। सो आई मेड दैट कम्युनिटी, एंड वहां से लोग आ रहे हैं नए, यहाँ रिटेन हो रहे हैं, सो वो एक एनक्लोज्ड स्पेस हो गया है। जो आ चुके वो मुझे भूल नहीं पाएंगे बिकॉज दे आर एवरीडे टॉकिंग ऑन द ग्रुप, और जो आ रहे हैं दे आर कमिंग थ्रू अ चैनल। तो ये कि अब ये सेम ही था, बट अब ये थोड़ा मोर, इट्स लिटिल बिट मोर ऑर्गेनाइज्ड। आई डोंट गेट क्वेरीज ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से ही हो रहा है, तो टाइम कंज्यूम हो रहा है उतना ही, और अब ये है कि मेरा एक ही जगह पे कंज्यूम हो रहा है। Got it. What was your happiest day after joining ICE? मिड जनवरी, आई रिमेम्बर आई वाज सिटिंग, आई वाज कैलकुलेटिंग द अमाउंट, कि जैसे हम मंथ के एंड पे करते हैं, इसलिए इस महीने तो काफी हो गए अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। आई वाज कैलकुलेटिंग इट, and I was like, shit, ये कब हुआ? Like I've hit the target, and I remember I was crying, I was laughing, sitting here only, because आप वो दिन इमेजिन नहीं करते हो, कॉर्पोरेट से निकलना, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम अर्निंग 100 रुपीज दैट पॉइंट ऑफ टाइम, महीने में या 10 दिन में, कभी 100 to 500 to 2500। तो आप इमेजिन ही नहीं करते हो कि आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, पहली बात, कोई माइंड सेट ब्लॉक है, सिंपल। एंड द डे इट हैपेंड, it was mid January, I was like crying and laughing at the same time,
alone. And I took my time to do that. आराम से I did that. And उसके बाद एक चीज ये हुई कि वो जो आपका ब्लॉक होता है ना कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हो, इट मेड मी लिमिटलेस. अब मैं यहाँ जब कोई भी चीज करती हूँ आई डोंट थिंक कि ये होगा कि नहीं होगा. लाइक टाइम वेस्ट हो रहा है यार, अभी तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, क्योंकि वो ब्लॉक उस दिन निकल गया मेरे दिमाग से. वो चीज हुई थी. I also So it was remember. mid January. I can have empathy for you. When I was doing the 6,000 rupees per month job, and I got the first sale of 6,000 rupees, which was for only 3 hours. And here I put 30 days to get 6,000. Here I put 3 hours and got 6,000. That was like the shift where I was like, okay, if I can make the double the amount in 3 hours, what can I do now in the next 30 days? And that was like the point. Right. So the So feeling is mutual. You can understand that very well. But this is a message जो भी लोग ये देखेंगे कि if you have that belief कि नहीं हो सकता, trust me, सब लोग ऐसे ही सोचते हैं. सब जो मिलियनेयर्स है आई थिंक वो भी यही सोचते हैं, सभी लोग ये सोचते हैं ये पॉसिबल है. जस्ट दैट ग्रिट, गर्थ. right. So now it's a point where you have made the money, where you're making the money, sorry, where you are growing it. What are you working on right now? Like, what's the next plan? अभी तो आई एम अगेन बाउंसिंग बैक टू वर्क बिकॉज देयर वाज सिचुएशंस एट होम व्हिच आई एम टेकिंग केयर ऑफ. आई वाज मेंटली ऑक्यूपाइड देयर एंड आई वांटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अभी आई एम बाउंसिंग बैक. प्लस अब इसके बाद प्लान है वेबिनार्स करने का बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट एंड आई हैव अ प्लान फॉर दैट वेरी सॉलिड कि मुझे किस चीज पे करना है, वो भी रीजन क्लियर है क्यों करना है उस पर. सो गेटिंग इनटू वेबिनार्स और इसी चीज को वापस से अभी शुरू करके जो स्ट्रैटेजीज मैंने छोड़ दी थी अप्लाई करना 2 महीने के लिए, कमिंग बैक टू दैट. And then the plans are, a lot of plans are there. Adding the merchandise like crystals. I used to do that, but वो भी करने के लिए crystals add करना, webinars करना, then this thing. And I have to start YouTube channel. Karan has been pushing me for that for a long time. He will kill me now. So YouTube channel is the priority currently. Got And it. then webinars. Okay, so YouTube channel, merchandise, and webinars. This is the plan that you're going for. For now. Right. So, all the people watching this would be like, oh, she has started to make money and all of that is good. But, in our community, we have this one thing is called a success rate because it's not about just the money you make, it's about the results your clients and students are getting, right? Can you share some case studies that your students or clients have got because of your tarot? Sure. So most of the times whenever they come for the query call पे हम कुछ बताते नहीं है because I can't tell without the cards. उस टाइम पे बहुत सिचुएशंस ऐसी होती है. पीपल कम फॉर मैरिज प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप, करियर, जॉब्स, स्टकनेस इन विच एवर एरिया. तो एज अ ह्यूमन आपके दिमाग में एकदम से सोल्यूशन आता है कि हाँ तो ये कर लो ना या वो कर लो या व्हाई डू यू वांट टू स्टे इन दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक मैरिज, छोड़ दो. बोलना बहुत आसान होता है बट आई कीप माई माउथ शट टिल द टाइम आई डोंट सी द कार्ड्स. सो व्हेन द कार्ड्स कम आउट कभी कभी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट एडवाइस दे देते हैं कि इतनी टॉक्सिक मैरिज में हो फिर भी रहो फॉर टाइम बी बिकॉज दिस इज द रीजन सो एंड सो व्हाटएवर इट इज. सो देयर वाज दिस क्लाइंट ऑफ माइन, द बिगेस्ट केस स्टडी दैट आई ऑलवेज से. It was she was my client. She was in Bhubaneswar, same lift that I was in. She was my junior also, but तब हम बात नहीं करते थे as. So she came to me and she was like that I've been married for 5 years. So when she joined lift उस time पे तब तक उसकी शादी को हो गए थे 2 साल. And then what happened? Her husband was in Hyderabad. She was in Bhubaneswar. She's born and brought up in Bhubaneswar, married in Bhubaneswar. जैसे वो लिफ्ट से निकली, she went to Bangalore, and her husband came to Bhubaneswar. So अब इनका कभी ना वो 5 साल से ये साथ ही नहीं रह पा रहे थे. And she was like, I have tried everything. मैंने जॉब ढूंढ ली है भुवनेश्वर में, मुझे वो भी नहीं मिल रही है. उन्होंने यहाँ पे ढूंढ ली है बैंगलोर में, he is not getting that. And our money is just going in air tickets. And now even family is saying कि आपको साथ रहना चाहिए, 5 साल हो गए, when will you start to do that? So तब मैंने टैरो नया नया शुरू किया था. I was scared that मैं क्या इसमें बता दूंगी जब कर चुके ये लोग सब कुछ ही तो. So I spoke to my mom. She passed away in 2021. My mom, कोविड के टाइम पे. So I spoke to my mom कि अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ. Mom said कि you just do your work, do your reading. नहीं होगा कुछ, tell them. I said okay. So I did the reading, and the reading said one thing, that don't ask your husband to come to Bangalore. Tell him to stay in Bhubaneswar. You being in Bangalore, quit your job. Okay. Quit your job. Go back to Bhubaneswar और वहां कुछ ना कुछ हो जाएगा.
अब इतनी बड़ी बात किसी को बोल देना ना, ये, और जब आपने नया नया काम शुरू किया होता है, आप कितना भी किसी को बोल दो दैट दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, आप अपना डिसीजन खुद लो, दे फॉलो इट, फाइन, ठीक है। एक महीने बाद व्हाट आई एम सीइंग ऑन ऑन फेसबुक इज दैट मैनेजर एट रिलायंस भुवनेश्वर। आई वाज कंफ्यूज्ड, ये क्या हुआ? सो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड देन शी मैसेज्ड मी, आई डिड एज यू सेड, सो आई क्विट माई जॉब, आई गेव द नोटिस पीरियड बिना पता होते हुए कि क्या होगा। आई वाज लाइक ठीक है, मैं छोड़ रही हूँ। And on the last day of my notice period, last day of the notice period, she got a call from Bhubaneswar कि मैम हमने नया नया रिलायंस स्टोर खोला है भुवनेश्वर में, हमें मर्चेंडाइजर चाहिए, मर्चेंडाइजर इज अ लोअर जॉब। तो आई सेड ओके, तो शी सेड, आई सेड नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, मैं क्यों करूँ मर्चेंडाइजिंग? आई सेड क्यों मना कर दिया, इतनी मुश्किल से जॉब मिल रही थी, आपने मना कर दिया? कि वेट, दे गेव मी द पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड अ गुड पैकेज देन आई वाज अर्निंग हियर। सो दैट इज वन ऑफ द केस स्टडीज दैट मेड मी बिलीव कि आपको कभी कभी ना ब्लॉकेजेस हटानी पड़ती है। अगर आप सोच रहे हो कि बैकअप रख लो और फिर हम आगे कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सेम थिंग, हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स की, किसी की शादी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, एंड लाइक हमने सब कुछ करके देख लिया, अभी क्या करना है? पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि उन्होंने खुद कोई ब्लॉकेज क्रिएट, माइंडसेट ब्लॉकेज क्रिएट करके रखी होती है। टैरो टेल्स यू दैट, you need to understand that, and then there will come a timeline ki 4 weeks or 4 months or 8 months or 7 months, and the I'm sorry, so the timelines come true accurately like that, उसी डेट पे होगी वो चीज। कंटिन्यूइंग विद दैट, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। नाउ दिस इज वन ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड्स। टाइमलाइंस बहुत एक्यूरेटली क्लियर हो जाती है कि अगर इतने टाइम में, मेरी खुद की टाइमलाइन एक्यूरेटली बैठी थी। मैंने आइस में ज्वाइन करने से 3 महीने पहले, लाइक कब होगी मेरी सिचुएशन ठीक, कुछ बता दो। ग्राफ तो नीचे जा रहा है, एंड द रीडिंग सेड 3 months फ्रॉम नाउ योर सिचुएशन विल स्टार्ट टू बिकम बेटर। Nice. उसके बीच में मुझे आइस मिला था, आइस नहीं सॉरी, और वर्कशॉप। Got it. So टाइमिंग, यस। you told me, you have taken all these courses, you have tried everything in the world. What made I stand out? Because what happens is the moment you take all these things, you're like, "Ki, ab sab same hai. I try anything in the world, it would not work for me." Right? That's what the case is. What made I stand out for you? आइस ज्वाइन करने के बाद द थिंग दैट मेड मी अंडरस्टैंड व्हाई इट स्टैंड्स आउट, सबसे पहला था जब वर्कशॉप करा था, एंड द वे यू स्पोक, द वे यू नॉट जस्ट स्पोक, एवरीबडी स्पीक्स ऑन वर्कशॉप्स, वादे करने बहुत आसान होते हैं, बट यू प्रूव्ड योरसेल्फ ऑन द वर्कशॉप। तो पहली चीज वो थी कि इफ द पर्सन हैज दिस मच अमाउंट ऑफ नॉलेज विद इन द वर्कशॉप, तो उससे पहली बात तो ये पता चलता है कि वांट्स टू हेल्प यू आउट मोर देन अर्निंग मनी। एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी, बट ही वांट्स टू हेल्प यू आउट। वो इंटेंशन काफी थी, वो मुझे और कहीं दिखी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरी चीज ये थी, जब मैं आइस में आई, सो मेंटोर्स, आई वाज लाइक ओके, इफ आई गेट स्टक आई हैव समबडी टू कॉल। ही एंड करण रायदूर इज नॉट, देयर आर मेनी मेंटोर्स बाय द वे, मैंने सिर्फ करण के साथ कनेक्ट किया है तो मैं उसी की तारीफ कर रही हूँ, बाकी सारे मेंटोर्स भी अच्छे हैं, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं है। बट करण रायदूर, व्हेन आई स्पोक टू हिम, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको सिर्फ इसी के बारे में पता है कि कैसे मार्केटिंग करनी है, क्या करना है। नो, ही हैज द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू आर डीलिंग विद। इफ आई वाज इन टैरो, he knew about tarot, he spoke about cards, Major arcana, minor arcana, he knows like everything. He knows about हाँ, cards. yes he knows। अब कोइंसिडेंटली हो या जो भी, he studies, I know that। तो आप कोर्स लेना बहुत आसान होता है, बट किसी को स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करवा के चलना, दैट ओनली आइस कैन डू, दैट आई कैन गारंटी। वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है कि आपके पास गाइडेंस है 24/7। सो दैट वाज वन थिंग विच वाज लाइक नहीं, ठीक है, आई स्टिल हैव दैट कि आई, अभी अगर मैंने 2-3 महीने नहीं भी काम किया, इफ आई हैव टू गेट बैक, आई हैव पीपल, आई कैन गो बैक। एनीवेयर एल्स आई एम नॉट सीइंग दैट। Right, makes sense. 3 biggest learnings from ICE. स्मार्ट वर्क ओवर द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना है, पर फिर स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज जितनी मेहनत करोगे पैसे उतने नहीं आएंगे, हार्ड वर्क ही चलता रहेगा। स्मार्ट वर्क ओवर द हार्ड वर्क। सेकेंड थिंग इज हाउ टू कन्वर्ट अ क्लाइंट,
क्लाइंट लीड्स पहले भी आ रहे थे, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट आपको पता ही नहीं उनसे क्या बात करनी है, क्या कम्युनिकेट करना है, आप साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हो बेसिकली, और आपके हाथ से लीड्स निकलते जा रहे हैं, तो इतनी मेहनत वेस्ट जा रही है. सो नाउ यू नो हाउ टू गेट अ क्लाइंट एंड हाउ टू रिटेन अ क्लाइंट. अब जो रीडिंग्स हो चुकी है, मुझे पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कितने लोग जा रहे हैं. अभी मुझे पता है people are retained, and what I am doing in addition is that I am taking monthly follow-ups also of situation that is out of concern also. तो मैंने वहां पे देखा है people come back for the follow-up reading also then. तो वहां पे भी conversion हो रही है. So how to smart work over the hard work, how to get a client and then how to retain a client. Sure. Yeah. There are a lot of people in the ICE community who have not got result as fast as you, right? They're like कि यार मैं भी ये कर रहा हूँ पर ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, right? What is your advice to people who have not got result as fast as you? Because everyone will get that is what I know, but they don't believe that, right? What is your advice to those people? So जिस दिन आइस में मैंने ये पोस्ट किया था कम्युनिटी व्हाट्सएप पे that I have I स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था मैंने कैलेंडर का, आई थिंक यू रिमेम्बर बिफोर एंड आफ्टर. तो उसके बाद शाम को मुझे कॉल्स आने लग गए थे जो उस ग्रुप पे लोग थे कि आई वाज लाइक अननोन नंबर से ये कौन लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं आस्किंग अबाउट इट, एंड दे आर कॉलिंग मी एंड एवरीबॉडी इज आस्किंग मी वन क्वेश्चन, कैसे किया कैसे किया कैसे किया. आई सेड यू आर एन आइस राइट, दे सेड यस. तो मैंने कहा आई जस्ट फॉलोड व्हाट ही सेड. व्हेन यू हैव मेड अ कोर्स ना, यू हैव टू पे अटेंशन टू लाइंस. आई टेल देम कि इतना कैजुअली अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक उसी में माइंडसेट में एक चीज बोली है दैट यू नीड टू कीप कैश एवरीवेयर. कितने लोगों ने किया होगा वो, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ 100 में से किसी एक या दो ने किया होगा, उसको पता होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो यू सेट कि सारी जगह पे ड्रॉर्स में जहां पे भी हो वहां पे अपने वॉलेट में इतना कैश रखो कि जब भी तुम कहीं पे भी हो तुम्हें ये पता चल रहा हो कि मेरे पास कैश की कमी नहीं है, साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली, एंड यू विल नो कि हाँ आई एम मेड फॉर दिस. ना पीपल विल नॉट डू दिस. ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया जो मेरे on the top of my head is coming. But the day you said this, I was so desperate to do everything. I was like, ठीक है. So ठीक है, I didn't put cash, but I have put coins here. मेरे वॉलेट में 5,000 हमेशा रहेगा ही रहेगा as cash. चाहे मैं कितना भी स्पेंड कर लूं, वो रखना है. उसके अलावा कहीं पे भी ये कैश रहेगा. So my advice to people who are in ICE and who are not in ICE, both. Follow every statement of what he is saying. Do what he's saying. You're not giving any magic pill. हमें आइस में आके ये लगता है कि अच्छा अब कुछ ऐसा बताएंगे जो हमें पता नहीं है, अच्छा अब कुछ ऐसा बताएंगे जो हमें पता नहीं है. पता तुम्हें सब होगा बट तुम कर नहीं रहे हो. ये वही बात है कि वो एक्सरसाइज, बट कितने लोग करेंगे उस चीज को. सो यू नीड टू फॉलो एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन. पढ़ना और उसको प्रैक्टिकलिटी में करना दो अलग चीजें होती है. Right. A lot of people are there who are watching this video and they're like कि आइस क्या है, ज्वाइन करूँ कि नहीं, इस लड़की को पे किया होगा ये बोलने के लिए, all of that, right? So now they're like कि what is this ICE? Should I join it? What's your advice to those people? First things first, I do not preach what I don't practice. Second thing, that would be an insult to me. Second thing is कि अगर मुझे पैसे पे करके किए होंगे तो भी मैं वही एंडोर्स करूंगी जिसमें मैं बिलीव करती हूँ. तो अगर किसी को लग रहा है कि पैसे पे करके किया या बिना पैसे पे करके किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं वही करूंगी एंडोर्स जो जिसमें मैं फेथ रखती हूँ 100%. सो पीपल हु हैव नॉट जॉइंड आइस, तो मेरा उनको सिर्फ एक ही सवाल है, इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है बता दो. अगर यू हैव अ लॉट ऑफ अदर गुरुज, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ. There's no problem. Like if you want No, I later. don't want to. Maybe later on when I speak to you, I'll do that, but I don't want to take any names. All of them are good in their work, no doubt. इसीलिए उनका काम चल रहा है. मैंने सबसे कुछ 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 सीखा है, पर किसी ने मुझे इतना रिजल्ट नहीं दिया है, मैं ये बोल रही हूँ. So if you go to any other coaches also, मैंने हर जगह के कोर्सेज ले लिए हैं, तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, घूम फिर के तुम इधर ही आओगे. एंड coming here, you do not have any other option. इसके अलावा तुम people have not taken ice, आप लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया जितना लगाना है. कुछ हुआ नहीं हुआ, कोर्सेज ले लिए, बाकी कुछ हुआ नहीं हुआ, तो फिर 99 रुपीज देकर के ये भी ट्राई कर लो, फिर पता चल जाएगा तुम्हें भी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ. बाकी इसके अलावा ऑप्शन है भी नहीं आपके पास कोई, आना ही पड़ेगा. So it's not
Why? It's when. It's not kyun aao, it's kab aao. Awesome. टाइम बचाना है तो आ जाओ. Yes. So all the people who want to connect to Akriti, maybe for her readings or maybe कुछ और बात करने के लिए, how can they connect to you? They can just go on Instagram @North Tarot, the North Tarot, Aakriti Mahajan, and just DM me. Cool. और अगर directly you want to book a session, there is my link of Calendly in the bio itself. You can click on it. So I'll drop both the links of Instagram and Calendly in the description. If you're interested to take readings from Akriti or to understand more about her life or connect with some collaboration, anything that you think of, there would be links in the description. Go over there and check it out. Any last words you have for this interview? The only last words that I have for this interview and for the people who are watching it is that do not think about getting into ice twice. You might learn everything. ऐसा नहीं है that you cannot. You can learn it over 10 years or 5 years. I have done that myself. पर अगर कोई वही चीज आपको 2 महीने में सिखा दे रहा है या 1 महीने में सिखा रहा है, why do you want to waste time? Do not think about it twice. Just get into it. Not even ICE. Just get into 99 workshop and then 499 workshop, and then maybe you can book a coaching call with them. तो आप decide कर लो. But this much you can invest in yourself. But you're just going to waste time if you don't get into this. That's my experience based on घाट का पानी पी के. Done. Thank you so much, Akriti, for coming over here. It was wonderful, wonderful talking to you. And Thank we you so would much, be Himanshu. obliged to see you in soon Empire Club winner, where you're doing over 10 lakhs a month with your webinars and your ads and boosting your business to next level. Right. So thank you so much for coming. It was wonderful, wonderful having you over here. Thank you, Himanshu. Thank you so much. And we are so grateful that you exist. Thank you. Many more to come. Many more people to join you. Now, मेरे भाई, if you liked this conversation and this video, I'm 100% sure you like different videos of mine as well. Now, don't subscribe to the channel. Go to my channel, check out all the videos. If you find value, then click on the subscribe button and the notification icon.